Hello everyone. Through this channel of Instant Stenography, I am going to cover the entire course within 15 days. You will be amazed to hear that how the course of stenography can be completed within 15 days. So, I will complete 2 chapters a day of shorthand Pitman. So, first of all, today I am going to explain you the 2 chapters of Pitman shorthand. So, the first thing we need to know about the principles which are governing the entire course. So, here we have 3 principles by which you can write the stenography. The first principle is impression. Impression. What do you mean by the term impression? Impression can be of 2 types, light and dark. Light and dark. It means if you write the line in a light manner, the impression is light one, and the same outline if you write with the emphasis on the outline, it will be dark. So the first rule that you need to adhere to is the impression, and the second one is direction, and the direction can be of 2 types, the upward and downward. Upward means if you have to write any line like this, you can go upward. The arrow suggests that you are writing towards the upside, and downward means going down the line. So the first principle is impression, the other one is direction, and the last one is position, which is very important, and I say that this is the soul of the entire stenography course. So positions can be of 3 types: first position, second position, and third position. And in the advanced level, you will find the 4th position that we will cover it later on. So these are the 3 principles by which you can write the dictation. Okay. Now we are going to learn the consonants. Consonants like name P, letter P, and character. And character can be written as this one, P. समझने की कोशिश करते हैं एक एक चीज को. देखिए ये जो P है, लेटर P का काम कर रहा है. इसका मतलब P से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, all those words which can be framed by using the letter P, you can frame it using the letter P, right? And this is light one. Light होगा ये. अभी मैंने आपको 3 प्रिंसिपल्स बताए थे. इम्प्रेशन, तो इसका इम्प्रेशन क्या होगा, हल्के हाथ से करना है आपको, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा डाउनवर्ड. तो आप इस प्रकार से बनाइए P, बिल्कुल हल्के हाथ से. इम्प्रेशन का ध्यान रखना है और डायरेक्शन का ध्यान रखना है. पोजीशन हम बाद में सीखेंगे. 2 चीजें ध्यान में रखिए, इम्प्रेशन एंड डायरेक्शन. तो इसका इम्प्रेशन कैसा है, लाइट है. L मतलब लाइट, हल्के हाथ से लिखना है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी. ये इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी. आपका हाथ बिल्कुल नीचे जाएगा. ऐसे आप कम से कम 3 से 4 लाइन बना लें. ठीक है. उसके बाद आपको बनाना है B. अब B का जो इंप्रेशन होगा वो होगा डार्क, और ये भी डाउनवर्ड ही होगा आपका. तो आप डार्क बनाते जाइए. ठीक है. उसके बाद आता है आपका T. अब T जो है आपका स्ट्रेट है एकदम, और ये भी डाउनवर्ड है आपका. बिल्कुल T बनाएंगे ऐसे. इसकी भी आप 3-4 लाइन बना लें. तो जितना आप करोगे उतनी ही आपकी स्पीड आएगी.
and in stenography speed matters, 80, 100 and 120, right? Now D, again D is dark, and then 6, D जो है आपका डार्क है, B आपका डार्क है, T आपका लाइट है और D आपका डार्क है, 6 आपका लाइट है, ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लाइट और J आपका डार्क है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे J को, एंड K अगेन इट इज लाइट एंड G इज डार्क। अब होगा क्या कि जैसे जैसे हम इसको करेंगे तो हम भूल जाएंगे, तो हमें क्या करना है, पहले इसकी एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स बना लें, इसकी भी बना सकते हो आप लोग। फिर आप क्या करोगे, इसको रिपीट करेंगे, P एंड B को एक साथ लिखेंगे, फिर T को करेंगे, फिर P B T तीनों को साथ लेंगे, फिर D को करेंगे, फिर P B T D कंप्लीट करेंगे। इससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन पे काम करना होगा, क्योंकि बिना कॉन्सोनेंट के कोई स्टेनोग्राफी नहीं सिखा सकता, राइट। Now we have just completed the straight strokes. Now moving further to the curve strokes. Now curve strokes means all those strokes which are derived from the circumference of the circle. Just see, this is the circle and through the circumference you can derive each and every consonant. Now let's see, F. The impression will be light, right, and the direction will be downward. So see my hand, this is the way you can write the F. F light रखना है एकदम, आप लोगों को ऐसे बनाना है। This is bit complicated, you have to pay extra bit of attention. V, V again it is dark. The same impression, the impression is dark and the direction will be downward. Ith, अब जो ith होता है वो आमने सामने होता है, ये आपका F एंड V था, ये जो आमने सामने होगा ये आपका ith होगा और ये आपका होगा light. See, and the same direction will be downward. D, it will be dark and the direction will be downward. S, this is S. Everything has two aspects, left and right, right? So इधर से हमने ले लिया अगर, तो इधर से भी लेंगे, ये S होगा हमारा, ये लाइट होगा, राइट। इंप्रेशन फिर आपका डाउनवर्ड रहेगा इसमें, और Z के अंदर बात करें तो ये डार्क होगा और इसका जो इंप्रेशन होगा वो डार्क होगा। इस ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा अपन, ये हमारा इस बन रहा है, ऐसे यहां से इस बना लेंगे, ठीक है। Z थोड़ा डार्क हो जाएगा, D स्टैंड्स फॉर डार्क मतलब इंप्रेशन, एंड डाउनवर्ड चल रहे हैं यहां पे सब कुछ, ये आपका Z हो गया। M की बात करें तो M, ये पोर्शन जो है वो आपका M है, ये भी लाइट है हमारा, ये इस प्रकार से हम M बनाएंगे। और N की बात करें तो ये भी लाइट है हमारा, और इंग वो हमारा डार्क है। इस तरीके से हम कर्व स्ट्रोक्स बनाएंगे, थोड़ा सा इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ओके। नाउ मूविंग टू द एंड ऑफ आवर कॉन्सोनेंट्स। सो L will be like this is the circle, so this portion is called L and this is upward, लाइट होगा ये और अपवर्ड होगा, बनाइए, ठीक है। R एंड रे, सबसे पहले हम बात करेंगे R की, तो R जो बनता है वो बनता है डाउनवर्ड, ये जो R है वो बनेगा आपका डाउनवर्ड, और ये लाइट होगा आपका, राइट। और अगर हम रे की बात करें
तो रे अपवर्ड बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, अपवर्ड। नाउ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे बच्चों को चे और रे के अंदर, चे एंड रे। चे जो हमने पहले बनाया था वो आपने ऐसे बनाया था, और रे जो बनाया था ऐसे बनाया था। अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बोलोगे कि ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, पहला डिफरेंस हो गया। लेकिन क्या होगा कि जब हम लिख लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने डाउनवर्ड बनाया था या अपवर्ड बनाया था। तो थोड़ा सा एंगल का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 या 60 से ज़्यादा ले सकते हैं अपन, ठीक है, इक्वल टू 60 और मोर देन 60। यहाँ पे 30 के आसपास लेना है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये आर है या सॉरी रे है या चे है। वी कैन इजीली डिफ्रेंशिएट थ्रू द एंगल। इफ द एंगल इज equal to 60 or more than 60, you can say it is che. And now if the angle is less than 30 or 30, you can say it is re. Okay, now way again it is upward and it is light one. ये light रहेंगे आपके, रे समझ में आ गया आपको, ये वे बना रहे हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको क्लोज नहीं करना है, सिंपल, this is and this is upward. ये is again upward and it is light, again it is light. So इस साइड से लेंगे अपन, ये आपका ये हो जाएगा। और हे आपके दो स्ट्रोक्स होते हैं, एक होता है आपका डाउनवर्ड और एक होता है आपका अपवर्ड। ये तो आपका डाउनवर्ड है और ये आपका अपवर्ड है, और ये एच जो है दोनों ही आपके लाइट हैं। इस प्रकार से ये सारे कॉन्सोनेंट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट यू हैव टू डिवोट 4 to 6 hours, राइट? ओके, नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्सोनेंट, नाउ वी आर मूविंग अहेड हाउ टू ज्वाइन these consonants so that we can form any word. Now just try to understand the principle behind joining the consonant. Whenever you write any stroke, this is P and this is T. अब इन दोनों को जोड़ना है अपन को, तो अपन कैसे जोड़ेंगे इसको, P and T. This is the way, keeping in view the impression and the direction, one can easily join the consonants. Likewise, T, D, che, re, we. So you can join any stroke by understanding the logic. या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है वहीं से लाइन शुरू हो रही है। यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका B, तो यहाँ पे हो गया आपका T। या यूँ समझें कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस प्रकार से आप ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स कर सकते हो। ओके, now moving to the chapter number 2, the title of the chapter is the vowels. We have 12 vowels in stenography and these can be represented through dot and dash. So the vowels can be classified into two parts, long and short. Dot, heavy dot or long, और डैश इंप्रेशन थोड़ा डार्क होगा, राइट? नाउ शॉर्ट की बात करें तो हल्का सा डॉट होगा और हल्का सा ही डैश होगा। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल दैट आई टॉक टू यू, सो दैट वाज द पोजीशन, एंड हियर द पोजीशन विल कम इनटू द पिक्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द vowel sound. Okay. Now the position. Position is very important and I think it is the soul of this stenography. Positions are of three types: first position, second position and third position. You will be totally confused what do I mean by the term position. So let's begin to understand each and every point. Like you have learnt P. This is P. But if I say
द फर्स्ट पोजीशन, अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, तो ये होगा अबव द लाइन। अबव द लाइन को हम कहते हैं फर्स्ट पोजीशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोजीशन। और ऑन द लाइन को, ये ऑन द लाइन है, इसको बोलेंगे अपन सेकंड पोजीशन। और क्रॉस कर देंगे अगर अपन, तो इसको बोल देंगे थ्रू द लाइन। दिस इज कॉल्ड थर्ड पोजीशन। सो कोई भी स्ट्रोक जो आपने अभी बनाए हैं, सीखे हैं, उसको अगर लाइन से ऊपर रख दें तो उसको अपन फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं। और सेकंड पोजीशन का मतलब होता है कि हम उसको अगर हम लाइन पे रख दें, और थर्ड पोजीशन का मतलब होता है कि लाइन से हम उस चीज़ को कटवा देते हैं या क्रॉस करवा देते हैं। अब साउंड्स क्या हैं? तो अभी तो हम डॉट और डैश के माध्यम से एक एक साउंड को सीखेंगे, लेकिन लेटर स्टेजेस में हम डॉट और डैश नहीं लगाएंगे, राइट? सो सबसे पहले बात करते हैं वावल्स की। तो जो वावल साउंड्स होते हैं वो दो होते हैं, एक हमारा होता है लॉन्ग, दूसरा होता है शॉर्ट। सो सबसे पहले हम डॉट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है आपका ए एच, आ साउंड, और ये जो बार नजर आती है इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। मतलब जो लॉन्ग वाउल साउंड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन बार लगाते हैं। ये ए हो गया। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर आपको आप लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आ और प, आप बोलोगे सर ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि अभी आपको बताया गया कि फर्स्ट पोजीशन होती है अबव द लाइन। अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो ये होगा लाइन पे, तो हम यहां पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए और प, ये बन गया आपका एप। इसी तरीके से ये ई है, तो ई अगर हम बनाएं तो थर्ड प्लेस पे आ रहा है ये फर्स्ट पोजीशन अबव द लाइन, सेकंड पोजीशन ऑन द लाइन, एंड थर्ड मीन्स क्रॉसिंग द लाइन। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो ये हो जाएगा ई और टी, ईट, या बात करें ट और ई टी, राइट? इसी तरीके से हमारे शॉर्ट साउंड्स भी होते हैं, जैसे हमने कहा ए, जैसे एट, ये हमारा हो गया ए, और सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा आपका ए। यहां पे हैवी साउंड था इसलिए दीर्घ स्वर था, यहां पे आपका लाइट साउंड है इसलिए आएगा ए, और शॉर्ट डॉट में हमारा आएगा ई। जैसे अगर मैं बात करूं इट, आई टी इट, और यहां पे हो गया ईट, इट, फर्क है। लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। सो इन टोटलिटी यू विल फाइंड द 12 वावल साउंड। सो लॉन्ग डैश, डैश को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ओ, ए डब्ल्यू, ओ। So whenever you find the word like so, ऐसे W, so आपको ऐसे लिखना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि आपको फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। अगेन इट इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। आपको ध्यान देना होगा जब भी हम फर्स्ट पोजीशन की बात करेंगे तो हमारा जो पहला स्ट्रोक है वो अबव द लाइन ही रहेगा, और सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो हमारा ऑन द लाइन रहेगा, और थर्ड की हम बात करें तो वो क्रॉसिंग द लाइन होगा। इसी तरीके से सेकंड पोजीशन की बात करें तो ओ, राइट, लाइक गो। थर्ड की हम बात करें तो ऊ। सो इस प्रकार से आपके ये लॉन्ग डैश वावल्स होंगे। शॉर्ट की बात करें तो यहां पे ओ था, यहां पे ओ, लाइक टॉप। यू सेकंड प्लेस की हम बात करें, लाइट डैश की बात करें तो अ साउंड, प्योर साउंड आएगा अ का, लाइक अप, अ। द साउंड ऑफ अ इज मोर प्रोमिनेंट इन दिस। ऊ, यहां पे भी ऊ है, यहां पे भी ऊ है, यहां पे दीर्घ स्वर है, यहां पे लाइट साउंड है। सो जब भी हम क्रॉस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा पुश। दिस इज कॉल्ड थर्ड प्लेस वावल्स। Okay, now
The concept of the vowel sound is bit complicated, and as I earlier said that it is the soul of the entire course. So I will explain to you the entire concept once again. So vowel sound, in order to manifest, in order to show the vowel sound, you have to keep the stroke in the following manner. Now if you have to write the first position vowel sound, you have to write above the line like this one. सेकंड प्लेस की बात करें आपको लाइन पे रखना होगा, और थर्ड की बात करें तो आपको क्रॉस करवाना होगा. फर्स्ट का मतलब होता है अबव द लाइन, सेकंड का मतलब होता है ऑन द लाइन, और थर्ड का मतलब होता है क्रॉसिंग द लाइन. क्लियर? अब आपको ये डॉट लगाने कैसे हैं, डैश कैसे लगाने हैं. अगर मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो ये लाइन है जैसे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. क्या ये सही है? ये भी सही है. यहां पे जितने भी मैंने आपको लिख के दिए हैं सब सही है. इसमें आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारा ध्यान होना चाहिए पहले वाले के ऊपर. जब तक ये ऊपर है तब तक कोई टेंशन नहीं है फर्स्ट पोजीशन के लिए. सेकंड जो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक आ रहे हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, फर्स्ट पे ध्यान रखना है. अगर आपने पहला जो साउंड सुना उसकी साउंड क्या आ रही है, उसके साउंड के मुताबिक आपको स्ट्रोक को रखना है. ठीक है? अगर मान लीजिए सेकंड प्लेस वावल साउंड होता तो मुझे पहला जो स्ट्रोक है वो लाइन पर रखना होगा, तो ये बिल्कुल सही है. चाहे मैं इधर भी लगा सकता हूं और डॉट इधर भी लगा सकता हूं. थर्ड प्लेस की अगर मैं बात करूं तो लाइन से क्रॉस होना पड़ेगा, लेकिन यहां पे डॉट का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो थर्ड प्लेस का जो डॉट आता है वो जो दूसरा खत्म हो रहा है उससे पहले लगाया जाता है. क्लियर? तो यहां पे हम लगाएंगे थर्ड प्लेस का, सेकंड प्लेस का तो यहां पे हम लगा देंगे. ठीक है? लेकिन जब हम थर्ड प्लेस की बात करेंगे तो हमें यहां पे लगाना होगा. रीजन क्या है इसके पीछे? मान लीजिए अगर मैं थर्ड प्लेस यहां पे लगा देता तो ये इसका फर्स्ट हो जाता, इसलिए हम इस पे नहीं लगाएंगे. हम कहां लगाएंगे? जो दूसरा स्ट्रोक खत्म हो रहा है तो वो बताएगा कि इसका थर्ड पोजीशन क्या है. ठीक है? Now come to the page number 10. We are going through each and every word, how these words are framed. The first word is calm. Now as I have already said to you that we have to pay attention on the sound and not the spelling. So calm. अब calm कैसे लिख रहे हैं अपन? क के बाद में आ रहा है, आ मतलब ये आ रहा है, और म एल तो नहीं आ रहा है इसमें. इस प्रकार से हम काम बनाएंगे. इसी तरीके से कैम, लाइट डॉट, अ साउंड अबव द लाइन, वेट, ए साउंड, हैवी साउंड आएगा, और जहां पे ए साउंड आ रहा है हमें लाइन पे रखना होगा और फिर टी ज्वाइन कर देंगे. बेट, बैट, ईल. अब ईल को थोड़ा समझते हैं. जो हमारा एल है वो हमारा अपवर्ड है, इसलिए ये फर्स्ट पोजीशन हुई. सॉरी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. दिस इज कॉल्ड ईल. ई एंड एल. ये ना सोचें आप कि हमेशा टॉप वाला फर्स्ट होगा, हमेशा वो फर्स्ट होगा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ इल, प, ओ और ड. पॉट, दिस इज ओ साउंड. पॉट फर्स्ट प्लेस. रोट सेकंड प्लेस, ओ. रोट, रट, लाइट डैश, अ, एंड देन पूल. अब पूल में क्या हो रहा है? यहां पे पी में ओ आ गया और फिर ल आ गया, पूल. अब इसमें क्रॉस करवाना जरूरी है क्योंकि ऊ साउंड आ रहा है और एल, और जब भी दो स्ट्रोक के बीच में थर्ड प्लेस वावल आता है तो जो दूसरा खत्म हो रहा है, दूसरा कौन सा है यहां पे? एल, क्योंकि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया. जो दूसरा खत्म हो रहा है उससे पहले लगाएंगे
तो ये पहला होता है, पहला कौन सा होता है? लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला लगाएंगे, ये आपका पुल बन गया। इसी तरीके से पुल, लाइट डैश, ऊ साउंड, पॉल, पॉली, खोल, खल, पील, पिल, फेड, फैट, रेड, रेड, डोम, डम। अब डम में एम के बाद में अगर बी आता है तो बी का साउंड नहीं आएगा, डम। नाउ वॉवल्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रोक्स। नाउ एल, ए एंड ल, एल, अर्थ, एप, एज, ईट। अब ईट कैसे बनाया आपने? थर्ड प्लेस है, ई एंड ट, ईट। When a vowel sign is placed on the right hand side of an upstroke or downstroke, it is read after the stroke. Lay, l and a, lay. Ray, r and a, ray. Keeping in view the impression and direction. Pay, j, shoe. When a vowel sign is placed above a horizontal stroke, it is read before the stroke as ek, eek. When a vowel sign is placed below a horizontal stroke, it is read after the stroke as k, ki, no. Now preceding vowels, ab, light dot, aid, h, edge, off, oath, ack, egg, aim, in, or। फॉलोइंग वॉवल्स मतलब स्ट्रोक पहले आएगा, उसके बाद में साउंड आएगा वॉवल्स का। लो, रो, वो, ही, बो, डे, फो, दे, के, गे, मो, नी। यहां पे बी और डब्ल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे बो वर्ड आ रहा है, तो जो बो होता है वो नाउन होता है, और आगे जाके आप देखोगे वर्ब के रूप में भी आएगा। इस तरीके से आउटलाइन होगी बाउ, एज ए वर्ब होगी बाउ, और एज ए नाउन होगा बो। एंड देन डे, फो, दे, के, गे, मो, नी। प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वॉवल्स, एबनिंग, इटली, अटैक, अशोर, एले, academy, arrow, agony, afar, anatomy. I hope each and every word is very clear to all of you. If you have any doubt, just write in the comment section. Thank you very much.